Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to online teaching of English compulsory first year. This is lecture number 5 and it's part 1 in which we are going to read and explain unit number 14, A Long Walk Home. So, before we get into the text, let's talk about the writer. So, this is page number 129 from where I have taken the introduction of the author. It's a very brief introduction in which we come to know that his name is Jason Bucaro. He was born in Estepona, Spain. So, actually, he is a Spanish writer but now settled in the United States or America, right? So I could not find a very good photo or confirmed or verified photo of this person, so I did not include it over here. But what I came to know is that he wrote this story in a very famous book in which there are other stories. It is Chicken Soup for the Teenage Soul. ये किताब दुनिया में बेस्ट सेलर के है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिकने और पढ़ी जाने वाली किताब है. इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं और टीन एजर से रिलेटेड कहानियाँ, जो बच्चे अपने एडोलेसेंस में होते हैं, जिनको डिफरेंट तरह के मसाइल होते हैं, ये उनकी किताब है, उनके बारे में उन्होंने अपनी कहानियाँ हैं. सो वी शुड नो that this story was taken from Chicken Soup for the Teenage Soul, which is a collection of real life stories meant to give lessons to the teens. So teenagers means the people, the young ones who are from 13 years to 19 years old. ठीक है? So Bucaro lives in the United States, means America, right? Now, if you could take out page number 128, because it's a very short story. I mean, it's a essay kind of a story. It's very brief. So, let's start from the title, and that is A Long Walk Home. A long walk home का मतलब है घर की तरफ लंबी walk या लंबी चहलकदमी. I grew up in the south of Spain in a little community called Estepona. See, immediately हमें situation, हमें settings introduce करा दिया गया है कि ये story set हुई है कहाँ पर, in the south of Spain, और exactly जगह का नाम है Estepona, right? अच्छा, I हर जगह पर आप देखेंगे I, इसका मतलब है कि this is the writer himself. And it is his story. Okay, this is Jason's story, and so he has written something in that story about some incident with him. अपने साथ पेश आने वाला कोई वाकया लिखा है. ठीक है, अच्छा जी. Now we are being introduced to the characters. Another character. I was 16 when one morning my father told me I could drive him into a remote village called Mijas, about 18 miles away, on the condition that I take the car to be serviced at a nearby garage. अच्छा, एकदम फास्ट फॉरवर्ड में, क्योंकि ये बहुत छोटा टेक्स्ट है इसका, तो जल्दी जल्दी कहानी आगे बढ़ रही है. तो क्या बताया कि उसकी उम्र कितनी है राइटर की? 16 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, तो सेटिंग में और क्या हमें पता चला कि ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, और दूसरा कैरेक्टर है इनके अपने फादर. सो उन्होंने क्या कहा कि आई कुड ड्राइव हिम इनटू, कि उन्होंने मुझे कहा, यानी वो अपने बारे में बता रहे कि उन्होंने मुझे ये कहा कि क्या तुम मुझे ले जाओगे रिमोट विलेज. रिमोट विलेज का मतलब है कि दूर दराज इलाके में, विच इज़ लोकेटेड फार अवे, और विलेज का नाम है मीहाज. अच्छा, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इसको हम मीजास क्यों नहीं कह रहे, ये तो जे है. लेट मी टेल यू कि ये इंग्लिश नहीं है. ये जब ये जो जगह का नाम है, ये चूंकि स्पेनिश में है या मैक्सिकन लैंग्वेज के अंदर, इन दो में क्या होता है
कि ये जो लेटर जे है इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज ह, ठीक है, तो हम इसको मिहास कहेंगे, मिजास नहीं कहेंगे। सिमिलरली अगर हम कहते हैं हैलापीनो, जैलापीनो नहीं होता, ये भी एक किस्म की एक खाने की चीज़ है। फिर इस तरह से जहाँ जहाँ पर इटालियन या मैक्सिकन में ज आएगा, लिखा हुआ जे होगा लेकिन उसको प्रोनाउंस ह करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। सो हाउ वी गोइंग टू प्रोनाउंस इट? इनटू अ रिमोट विलेज। तो आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को जो मैंने हाईलाइट की हुई इनको कीजिए। देखें, इवन आप इसको भी कर सकते हैं कि व्हाट वाज द एज ऑफ द राइटर एट दैट टाइम, तो 16 years old. And which village they went? The father asked him to go. It was Mihas, which was about how many miles away? 18 miles away. On the condition, और शर्त क्या लगाई? कंडीशन का मतलब है कि on this शर्त उन्होंने क्या कहा कि that I take the car to be serviced at a nearby garage, कि करीबी ही किसी वर्कशॉप में जाके गाड़ी को चेक कराना है। सर्विस्ड का मतलब है कि उसको देखना है कि उसके अंदर कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है। तो ये शर्त है कि गाड़ी उसको थोड़ी सी ठीक करानी होगी बेटे ने, ठीक है। Having just learned to drive and hardly ever having the opportunity to use the car, I readily accepted. अच्छा, अब जैसे लड़के होते हैं उनको गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा टीनेजर्स को होता है कि अब अब्बू गाड़ी क्यों नहीं दे रहे हमें, हमारे फादर हमें गाड़ी, तो ये तो उसको अल्लाह ने मौका दे दिया। तो ही वॉज सो एक्साइटेड कि उसको आज गाड़ी वो खुद चलाएगा। तो उसने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं जाके गाड़ी जो है उसको चेक भी करा लूँगा, आपको ले भी जाऊँगा, क्योंकि उसको ड्राइविंग अच्छी लगती थी, राइट। So having just learned to drive and hardly ever having the opportunity to use the car, I readily accepted. Readily होता है immediately, कुछ सोचे बगैर। I drove dad into Miha's and promised to pick him up at 4 PM. ये आपने नोट करना है कि उसने अपने फादर से कहा कि ठीक है, आप वो उसके फादर को उसने गांव में उतारा मिहास में, और फिर कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको 4 o'clock जो है शाम के टाइम लेने आ जाऊंगा, ठीक है। ये वादा किया किसने? बेटे ने अपने फादर से। देन ड्रोव टू अ नियर बाय गैरेज एंड ड्रॉप्ड ऑफ द कार। और फिर क्या हुआ कि वो करीब ही एक वर्कशॉप थी उस एरिया में, वहां पर चला गया और उसने अपनी गाड़ी से वो उतर गया। अच्छा, अब होता ये है कि गाड़ी तो टाइम लगाती है जब उसकी सर्विस हो रही होती है। सो बिकॉज आई हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, यानी मुझे कुछ घंटे तो गुजारने थे। हैड टू स्पेंड, टू स्पेयर का मतलब है कि दे वर अवेलेबल। आई डिसाइडेड टू कैच अ कपल ऑफ मूवीज एट अ थिएटर नियर द गैरेज। अच्छा, क्योंकि राइटर जो है वो अमेरिकन लैंग्वेज जो है यहाँ पर उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश में लिखा है, तो ये थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पर है ना, ही जस्ट लर्नड। अब ब्रिटिश इंग्लिश में सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न होती है लर्नड, टी होता है उधर, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश अमेरिकन में होती है ईडी, लर्नड। इसी तरह से अनदर हिंट इज कि अमेरिकन जो हैं वो मूवीज कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं फिल्म्स, ठीक है, फिल्म्स। तो दोनों का एक ही मतलब है। आई डिसाइडेड टू कैच अ कपल ऑफ मूवीज, यानी कि बस कोई 2 फिल्म्स उसने कहा कि मैं देखता हूँ, कहाँ पर? एट अ थिएटर नियर द गैरेज। उसने कहा चलो अब टाइम कैसे गुजारूं, तो चलो ऐसा करता हूँ कि गैरेज के करीब ही एक थिएटर है जहाँ पर ये 2 फिल्में देख लूंगा। घंटा 1.5 घंटे की एक एक होगी तो 2-3 घंटे तो गुजर जाएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द केस। हाउएवर, I became so immersed in the films that I completely lost track of time. पर हुआ क्या? अच्छा, अब देखिए ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी लगी हुई हैं, ये लिंक्स लगे हुए हैं, सो दैट द प्रीवियस जो लाइंस हैं उनके साथ एक लिंक डेवलप हो। However, I became so immersed, इतना इन्वॉल्व हो गया, इतना उस फिल्म में खो गया, that I completely lost track of time. ट्रैक का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ टाइम। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, पता भी नहीं चला। When the last movie had finished, I looked down at my watch. God, कितना टाइम है? It was 6 o'clock. और लेना कब था फादर को? 4 PM, यानी 4 o'clock. I was 2 hours late. अभी देखिए आगे एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का जब भी आता है इसका मतलब होता है कि इसके साथ कोई फीलिंग या कोई इमोशन है। अब इधर ये डर गया है, ठीक है,
क्योंकि फादर से अब डांट पड़ेगी बहुत ज़्यादा, 2 घंटे बहुत टाइम होता है. ऑल राइट, आई न्यू डैड वुड बी एंग्री इफ ही फाउंड आउट आई हैड बिन वॉचिंग मूवीज. अब जिस तरह से हर बाप जो है उसको अच्छा नहीं लगता कि उसके बच्चे फिल्में देखें जाके, उनको को लगता है टाइम ज़ाय करने वाली बात है, ऊपर से लेट भी हो गए हैं. अब इसकी बुरी हालत. ही वुड नेवर लेट मी ड्राइव अगेन. और अब इसको ये परेशानी कि अब तो पनिशमेंट के तौर पे वो उसको कभी ड्राइव ही नहीं करने देंगे. सो ही वुड नेवर लेट मी ड्राइव अगेन. अब देखें ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज हुई है. ये है आई हैड की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आइड, ठीक है, आइड बी. एंड ही वुड, ये वुड और हैड दोनों की एक ही कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है. ही वुड नेवर लेट मी ड्राइव अगेन. अच्छा, अब चूंकि इसको 2 तरह की बातें थी इसमें. एक तो ये कि उसको डर लग रहा था फादर से कि वो डांटेंगे, खफा होंगे. द अदर थिंग वाज कि वो उसको एज अ पनिशमेंट फिर ड्राइव भी नहीं करने देंगे. अब इन 2 बातों की वजह से व्हाट हैपन्स, I decided to tell him that the car needed some repairs and that they had taken longer than had been expected. अब उसने झूठ बोलने का फैसला किया. उसने कहा कि मैं तो अपने फादर को अब ये बताऊंगा कि गाड़ी का काम ज़रा ज़्यादा था. रिपेयर्स का मतलब है कि रेस्टोरेशन टू न्यू कंडीशन, यानी कि इसके अंदर मुरम्मत या काम ज़्यादा था. एंड दैट दे हैड टेकन लॉन्गर, और जितना टाइम उन्होंने लगाना था उससे वो ज़्यादा लग गया. तो मैं ये बात बता दूंगा क्योंकि गाड़ियों पर टाइम तो लग जाता है ज़्यादा. सो आई ड्रोव अप टू द प्लेस वेयर वी हैड प्लान टू मीट. उन्होंने पहले से एक जगह तय की थी कि जब गाड़ी सही हो जाएगी तो इस जगह पर हम आके मिलेंगे. एंड सॉ डैड वेटिंग पेशेंटली ऑन द कॉर्नर. अच्छा, ये भी बड़ा बंदा एम्बेरस हो जाता है ना कि आपका कोई अम्मी अबू में से कोई एक उधर आपका इतना इंतज़ार कर रहा हो, तो आप थोड़ा एम्बेरस भी हो जाते हैं, थोड़ा डरते भी हैं, बट एट द सेम टाइम यू गेट एम्बेरस्ड, ठीक है. अब ही हैज़ मिक्स्ड फीलिंग्स, एक तो डरा हुआ भी है, एम्बेरस भी है, अशेम्ड भी है, ठीक है. I apologized, यानी I said sorry for being late and told him that I would come as quickly as I could. I had come. अब देखो ये had का हो जाएगा क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चला कि ये would नहीं है, ये had है, ठीक है. would और had का एक ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, एक ही शॉर्ट फॉर्म है, दोनों को अपॉस्ट्रोफी डी लिखते हैं, ठीक है. बट ये यहाँ पर I would नहीं होगा. I had come as quickly as I could, बट द कार हैड नीडेड सम मेजर रिपेयर्स. वही वाला झूठ जो उसने कहा था कि वो करेगा. अच्छा, आई नेवर फॉरगेट द लुक ही गेव मी. लेकिन वो भी तो उसका फादर था ना, उसको भी तो पता था कि ये बात कुछ सही नहीं कर रहा है, ठीक है. सो आई नेवर फॉरगेट द लुक ही गेव मी. आज भी जब वो याद करता है तो उसको एकदम से हो जाता है कि किस तरह से उन्होंने मुझे देखा. एंड वॉट द फादर सेज, पहला ही जब वो बोलते हैं तो वो कहते हैं, आई एम डिसअपॉइंटेड दैट यू फील यू हैव टू लाई टू मी जेसन. यहाँ से एकदम से मैंने उसका नाम पता चलता है ऑफ दैट टीनेजर बॉय, एंड ही इज दिस, द राइटर्स नेम इज द सेम. सो कहते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी विद यू. मैं आपसे मायूस हो गया कि आपको मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ गई. व्हाट डू यू मीन? आई एम टेलिंग द ट्रूथ. तो वो बेटा कहता है कि मैं तो सच बोल रहा हूँ. Dad looked at me again. When you did not show up, I called the garage to ask if there were any problems, and they told me that you had not yet picked up the car. तो वो उसको कहते कि दिल में तो कह रहा होगा कि बेटा जी तुम मेरे बाप तो नहीं हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ. तो कहते हैं कि जब तुम बहुत देर तक नहीं आए तो आई कॉल्ड द गैरेज, मैंने वर्कशॉप में फ़ोन किया, उनसे पूछा कि क्या मसला है. तो उन्होंने कहा कि गाड़ी तो सही है बट आप अभी तक जाके नहीं पहुंचे वहाँ पे. सो यू सी, कहते देखा तुमने, आई नो देयर वर नो प्रॉब्लम्स विद द कार. तो मुझे तो पता था कि गाड़ी के साथ तो कोई मसला नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुमने मुझसे झूठ बोला. अच्छा, नाउ दिस इज़ द फर्स्ट पेज दैट हैज़ एंडेड. इसके जो इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं, सिंस इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, मतलब ये बहुत शॉर्ट है तो इसके हम इकट्ठा डिस्कस करेंगे, राइट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. अच्छा, अ रश ऑफ गिल्ट रैन थ्रू मी. अब एकदम से जैसे ना एक किसी ने जोर से इसके अंदर ऐसे जो एक होता है ना कि आपको गिल्ट होने लग जाता है, आपको अंदर पछतावा होने लग जाता है, आप मुजरिम महसूस कर रहे होते हैं. सो अ लॉट ऑफ गिल्ट रैन थ्रू मी
एंड एज आई फीबली होता है कि बहुत वीक वे में, कमज़ोर वे में। कन्फेस का मतलब होता है कि एतराफ़ किया। आई एक्सेप्टेड माई ट्रिप टू द मूवी थिएटर एंड द रियल रीज़न फॉर माई टार्डीनेस होता है टू बी लेट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग लेट। तो अपने ताख़ीर होने की या देर से आने का उसने कहा कि हाँ बस मैं फिल्म देखने गया था, मतलब अब सच बोल देता है, ठीक है, क्योंकि बाप ने पकड़ लिया होता है उसको, उसके डैड ने। डैड लिसन्ड इंटेंटली होता है गौर से, विद फोकस, विद कंसंट्रेशन, एज अ सैडनेस पास्ड थ्रू हिम, और उनके फेस के ऊपर एक अफसोस सामने नजर आ रहा था, ठीक है। आई एम एंग्री नॉट विद यू बट विद माई सेल्फ। अच्छा, अब ये वाला जुमला जो है ना, इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर द सन। उस बेटा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसको तो ये था कि उसका बाप जो है, उनके फादर जो है, इस पर चीखेंगे, गुस्सा करेंगे, डांटेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि हाँ मैं गुस्सा है मुझे, बट नॉट विद यू बट विद माई सेल्फ, मुझे तो अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। यू सी, क्योंकि आई रियलाइज दैट आई हैव फेल्ड एज अ फादर इफ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स यू फील दैट यू हैव टू लाई टू मी। कहते हैं मैं, मुझे लगता है कि मैं अच्छा फादर नहीं था। अगर तुम इतने अरसे में मुझसे सच भी बोलने की हिम्मत नहीं रखते, इट मीन्स कि इट्स माई मिस्टेक। अच्छा, अब जाहिर बात है, ये बात जब बेटा सुनता है तो उसके अंदर और एम्बेरसमेंट और अशेम्ड हो जाता है, और उसको पछतावा होता है कि उसने क्यों ऐसा किया, क्योंकि नेचुरली ऑल दिस इज मेकिंग हिम एम्बेरस्ड, द सन इज गेटिंग एम्बेरस्ड। I have failed because I have brought up a son who cannot even tell the truth to his own father. कहते हैं कि मैं तो, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैंने एक ऐसे बच्चे की, ब्रॉट अप का मतलब होता है टू रेज या तरबियत करना, कि मैंने एक ऐसे बच्चे को इस तरह की तरबियत की है उसकी, जो कि अपने फादर से सच भी नहीं बोल सकता। अच्छा, अब यहाँ से देखें, रेलेवेंस विद द टाइटल आ जाएगी। कहता है आई एम गोइंग टू वॉक होम नाउ एंड कंटेम्पलेट एंड थिंक हार्ड वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग ऑल दीज ईयर्स। अच्छा, अब ये बात बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शॉकिंग थी फॉर द सन। क्यों? कि ये इतना थोड़ा जर्नी नहीं था। कितना जर्नी था? इट वॉज 18 माइल्स अवे फ्रॉम एस्टिफोना। ये विलेज जो है, इट वॉज 18 माइल्स अवे, 18 मील दूर था। और पैदल चलने में, और ज़ाहिरा फादर थोड़ा, खैर इतना एजड तो नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स अगर बेटा जो है वो गाड़ी में आएगा और फादर जो है वो वॉक करेंगे, तो थोड़ा बच्चे को भी शर्मिंदगी होगी इस बात पे, ठीक है। तो वो से कहता है कि आई एम गोइंग टू वॉक होम नाउ एंड कंटेम्पलेट वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग ऑल दीज ईयर्स। तो मैं रास्ते में फिर सोचूंगा कि मेरे से क्या गलती हुई, मैंने क्यों तुम्हें सच बोलना ना सिखा सका मैं। ओके, अच्छा, अब ये डिसीजन आ जाता है फादर का। बट डैड, इट्स 18 माइल्स टू होम। कहते कि तो थोड़ा रास्ता तो नहीं है, इट्स 18 माइल्स होम, इट्स डार्क, और ऊपर से इट्स इवनिंग टाइम, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो जाता है। यू कांट वॉक होम, और इस अंधेरे में आप कैसे चलेंगे? एक तो लंबा रास्ता, ऊपर से रोशनी भी खत्म हो रही है। माई प्रोटेस्ट्स, माई अपॉलॉजीज एंड द रेस्ट ऑफ माई अट्रेंसेस, यानी जो भी मैं कहता रहा, माई सेइंग्स वर यूजलेस। फादर ने बिल्कुल नहीं सुनी। इससे हमें पता चलता है कि फादर इज क्वाइट हेड स्ट्रॉन्ग। जो उन्होंने फैसला कर लिया है उसको तब्दील नहीं करते। आई हैड लेट माई फादर डाउन। अच्छा, टू लेट समबडी डाउन एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू डिसअपॉइंट, किसी को मायूस करना, ठीक है। तो कहते हैं कि मैंने अपने फादर को मायूस कर दिया था। अब ये चीज़ बेटे के लिए भी बहुत तकलीफ वाली होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। सो आई हैड लेट माई फादर डाउन एंड आई वॉज अबाउट टू लर्न वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल लेसन्स ऑफ माई लाइफ। कहते हैं अब मुझे ज़िंदगी इतना तकलीफ दे लेसन सिखाने वाली है, सबक देने वाली है, बिकॉज फादर इज़ वॉकिंग, ही डजेंट लिसन टू हिम एट द मोमेंट। अब इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि ख़ुद वो गाड़ी में है, मतलब एक अजीब सिचुएशन बन गई है, राइट। डैड बिगैन वॉकिंग अलॉन्ग द डस्टी रोड्स। अब ज़ाहिर है धूल मट्टी होती है रोड्स के ऊपर। आई क्विकली जम्प्ड इन द कार एंड फॉलोड बिहाइंड। अब होता है ना कभी कभार हम लोग खुद भी, अब जैसे मैं भी एक मदर हूँ, तो हम थोड़ा सा गुस्सा कर देते हैं, तो थोड़ी देर बाद ही हम कहते हैं अच्छा चलो यार बच्चे से दोस्ती कर लिए हो गया। उससे ये होता है कि बच्चा सीखता नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें,
अब ये गाड़ी में तो ये आ गया, इसका ख्याल था कि फादर थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़ेगा और वो गाड़ी में बैठ जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से वो क्विकली ही जम्प्ड इनटू द कार एंड फॉलोड बिहाइंड, होपिंग, क्या उसको उम्मीद थी, ही वुड रिलेंट, रिलेंट होता है स्टॉप, कि वो रुक जाएगा फादर। आई प्लीडेड, आई रिक्वेस्टेड ऑल द वे। अब वो पीछे आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी लेके जा रहा है, साथ साथ से गुजर के बार बार एक ही बात करता है कि मुझे माफ़ कर दें, गाड़ी में बैठ जाएं, प्लीज़ ना चलें। टेलिंग हिम हाउ सॉरी आई वॉज, और साथ साथ उनसे बात करता जा रहा है कि मुझे बहुत तकलीफ, आप ऐसे ना चलें। बट देखिए, अब मैंने आपसे कहा ना कितना हेड स्ट्रॉन्ग फादर है, उसने जो एक दफ़ा डिसीजन ले लिया तो ले लिया। बट ही सिंपली इग्नोर्ड मी, मतलब टोटली ही इग्नोर्स हिम, continuing on silently, and he kept on walking silently, कुछ भी नहीं कह रहा था वो, सोच में था, सोच रहा था, of course he was hurt, thoughtfully and painfully। तो एक तो उसको दुख था फादर को, दूसरा वो सोचों में भी था। For 18 miles I drove behind him, averaging about 5 miles per hour, और अगर स्पीड का हिसाब लगाएं तो 1 घंटे में सिर्फ 5 माइल्स, तो आप ये देखें तकरीबन 4 से 5 घंटे का ये सफ़र बन गया, जो कि 18 माइल्स, अदरवाइज इतना लंबा सफ़र नहीं होता इन कार, ठीक है। लेकिन चूंकि वो फादर ने उस दिन 18 माइल्स जो है वो सफ़र किया वापसी का, ठीक है, और इसके साथ साथ बेटे को भी पीछे चलना पड़ा। और लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है कि सीइंग माई फादर इन सो मच फिजिकल एंड इमोशनल पेन वॉज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंस। डिस्ट्रेसिंग होता है वेरी डिस्टर्बिंग, पेनफुल और डिस्ट्रेसिंग का मतलब एक ही तकरीबन है, दे आर सिनोनिम्स, राइट, दैट आई हैव एवर फेस्ड। हाउएवर, लेकिन इसका अच्छा रिजल्ट भी निकला है। वो क्या रिजल्ट निकला है, दैट इट वॉज ऑल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल लेसन, और ये है लेसन, आई हैव नेवर लाइड टू हिम सिंस। तकलीफ तो हुई, दोनों को हुई, फादर को भी सन को भी, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि उसके बाद से कभी भी उसने एटलीस्ट अपने फादर से झूठ नहीं बोला। तो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द मेन पॉइंट्स। if you look at it as a genre means special kind, special type, ये है जी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, नैरेटिव होता है कहानी, स्टोरी, और ये फर्स्ट पर्सन में है। देखिए आई राइटर खुद अपने आप की कहानी बता रहा है। इसको हम पर्सनल नैरेटिव भी कह सकते हैं, यानी पर्सनल स्टोरी, एक बंदे की अपनी स्टोरी। इसको हम ऑटोबायोग्राफिकल भी कह सकते हैं। मैंने एस्से लिख दिया, लेकिन ये स्टोरी कम एस्से दोनों चीज़ें हैं। स्टोरी के थ्रू हमें पता चलता है, इट्स अ नैरेटिव एस्से भी हो सकता है ये, क्यों कहानी वाला एक एस्से है उस तरह से। तो ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब ये होता है कि जो खुद की एक कहानी होती है, आप बीती जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेटिंग्स में हम देखते हैं कि इट्स अ सेटिंग इन एस्टिपोना स्पेन, लेकिन उसके अंदर फिर हमारे पास सेटिंग आ रही है अ विलेज मिहास, और एक ही दिन की हैपनिंग्स हैं, यानी फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, पूरे एक दिन की कहानी है ये, ठीक है। ऑलराइट, कैरेक्टर्स में वी हैव 2 कैरेक्टर्स, द राइटर जेसन हु वाज 16 years old एट दैट टाइम एंड हिज फादर, ठीक है। ये 2 लोगों की कहानी है। अच्छा, सिचुएशन ये है कि द राइटर हैज़ टू ड्राइव फादर्स कार टू टेक हिम टू अ विलेज एंड टू गेट इट सर्विस्ड। सिचुएशन ये है जी, ठीक है। अच्छा, मेरे लिए ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में जितनी भी अभी तक स्टोरीज चल रही हैं, दे आर बेसिकली बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। अगर आप देखें, जो कहानी नेवर सर्ड की थी उसमें भी यही बात थी, ब्लैंकेट वाले स्टोरी में भी यही बात थी, अब इस स्टोरी में भी यही बात है। तो शायद बेटियां ज़रा डिफरेंट होती होंगी, दैट्स वाई, लेकिन बहरहाल फादर एंड सन रिलेशनशिप पे बड़ी कहानी है, तो इस पर सोचें कि ऐसा क्यों इन्होंने किया। अच्छा जी, सो दिस इज़ द सिचुएशन। अच्छा, अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, देखिए जी, कॉन्फ्लिक्ट या किसी टेंशन के बगैर तो कहानी में सस्पेंस भी नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होता। दुनिया में अगर हमारे पास गम ना हो तो यहाँ पर आप जी भी नहीं सकते। इस दुनिया का मज़ा कह लें, या इस दुनिया के अंदर जो हम सीखते हैं, जो लर्निंग होती है, वो किसी न किसी क्राइसिस में होती है, किसी न किसी
परेशानी की वजह से होती है. सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी. तो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या है या किसी किस्म की टेंशन या जो मसला क्या है कि जेसन इज़ लेट टू पिक अप हिज फादर. मसला वहीं से बना था ना. एंड इज़ अफ्रेड ऑफ हिज एंगर. ठीक है, ये असल में मसला है, इस जिसकी वजह से उसने झूठ बोला है, जिसकी वजह से फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. और थीम इसका ये है कि इट्स अबाउट फैमिली वैल्यूज, रिलेशनशिप्स, कैरेक्टर बिल्डिंग. और ये जो मैंने आखिर में फिर एक सेंटेंस लिख दिया है कि समटाइम्स थ्रू पेनफुल एक्सपीरियंसेस वन लर्न्स एन एवरलास्टिंग लेसन हाउ टू अपहोल्ड मॉरल वैल्यूज. कभी कभार ऐसा होता है कि किसी बहुत तकलीफ दे एक्सपीरियंसेस की वजह से इंसान जो है वो अपने जो अखलाकी जो कदरें हैं या अपनी फैमिली के अंदर जो जिस तरह की कोई वैल्यूज़ होती हैं उनको सीखता ही इस तरह से है कि उसको कोई हार्ड लेसन मिलता है. दैट्स वाई. सो द होल थीम इज़ अबाउट कीपिंग द फैमिली वैल्यूज़, रिलेशनशिप्स इंटैक्ट. और ये तरबियत के ऊपर, किरदार साजी के बारे में भी this is an important lesson. Right. An important part of every story is or every narrative is plot. ठीक है, प्लॉट हमेशा उस चीज़ को कहते हैं जो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, कि कहानी को कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया है. कहानियाँ तो दुनिया में कोई थोड़ी सी होती है, लेकिन उसका प्लॉट कहते हैं ना, दुनिया में सिर्फ 7 कहानियाँ हैं. देयर आर ओनली 7 स्टोरीज, लेकिन उसको डिफरेंट तरीक़ों से आगे पीछे इवेंट करके उनको इंटरेस्टिंग बना के रीडर्स तक लाया जाता है. राइट. सो व्हाट इज़ द प्लॉट कंस्ट्रक्शन? इसका प्लॉट है जी लीनियर प्लॉट. अब लीनियर प्लॉट कैसा होता है ये मैंने आगे उसकी पूरी डेफिनेशन लिख दी है. लीनियर जैसे लाइन, लाइन का मतलब है कि एक सीध में चलता हुआ है. ठीक है ना, कि इसकी हैपनिंग्स क्या हैं फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. इसको एस लिखिएगा, कंसिस्ट्स, यानी लीनियर प्लॉट कंसिस्ट्स, एस होना चाहिए. राइट. कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैव अ क्लियर बिगिनिंग. इसकी बड़ी क्लियर बिगिनिंग है. अब हमें पता है कि दोनों निकल रहे हैं, जा रहे हैं, कोई चीज़ इसका सीक्वेंस बहुत सीधा सा है. दैट्स वाई इट्स लीनियर. बिगिनिंग, मिडल एंड एंड. द स्टोरी अनफोल्ड्स. अनफोल्ड्स का मतलब है ओपन्स अप इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक तरतीब के साथ, वाक़यात एक तरतीब के साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं है. वो एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा. विच मीन्स दे आर टोल्ड इन द ऑर्डर दे हैपन. तो कभी कभार जब आप कहानियाँ देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि पहले एक बात करते हैं, फिर उसका सस्पेंस रखते हैं, फिर दूसरी बात कहीं पास्ट में चले जाते हैं, फिर कहीं प्रेजेंट में आ जाते हैं. हेयर इट्स नॉट द केस. हेयर दे हैव टोल्ड अस द स्टोरी इन अ प्रॉपर 1 2 3 4 5. अगर 10 तक स्टोरी जा रही है तो इस तरह से जा रही है. ठीक है. सो इट्स इन द सीक्वेंस. और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है एक प्रॉपर ऑर्डर ऑफ हैपनिंग में है, ऑर्डर ऑफ अक्रंस में है. ठीक है जी. अच्छा, ये मैं बार बार आपको याद कराती रहूँगी कि दिस इज़ हाउ द प्लॉट मूव्स. हमेशा पहले एक्सपोजिशन होता है. तो पहले एक्सपोजिशन में क्या चीज़ है जी, साथ साथ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वन बाय वन. एक्सपोजिशन का मतलब ही इंट्रोडक्शन होता है. इंट्रोडक्शन में क्या है? अच्छा, पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे ना, द फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ इसमें मौजूद है पहले पैराग्राफ में. यानी कि इसमें हमें सेटिंग भी पता चल जाती है, कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं हम, सिचुएशन भी पता चल जाती है. सिचुएशन क्या है कि ड्राइविंग इनटू अ विलेज, सन इज टेकिंग द फादर टू द विलेज. और कॉन्फ्लिक्ट भी हमें पहले ही पैराग्राफ में पता चल जाता है. और वो क्या है कि लेट टू पिक अप फादर. पहले ही पैराग्राफ में एवरीथिंग हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? इंसाइटिंग इंसिडेंट. ये हिस्सा है राइजिंग एक्शन का. इंसाइटिंग का मतलब होता है कि जिसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई चीज़ बनती है, कोई मसला खड़ा होता है. ठीक है. इंसाइट का मतलब होता है कि किसी को कोई काम करने के लिए एक रीज़न बनती है. ठीक है. सो राइजिंग एक्शन का मतलब है कि जी इसमें स्टार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है. अब इंसाइटिंग इंसिडेंट कौन सा होता है इनमें से जिसकी वजह से सब कहानी आगे चलती है? कि सन इज़ अफ्रेड ऑफ फादर्स एंगर. देखिए, आगे तो स्टोरी मूव ही ना करती अगर वो फादर के गुस्से से ना डरता,
तो उसको झूठ भी ना बोलना पड़ता, तो बात तो सारी वहीं ख़त्म हो जाती। वो सीधा सीधा बताता हाँ जी मैं लेट हो गया क्योंकि मैं फ़िल्म देख रहा था। बट इस तरह तो ज़िंदगी नहीं होती ना। ज़िंदगी में तो बहुत से ट्विस्ट्स हैं, टर्न्स हैं। ये सड़क सीधी नहीं है। इस रोड के ऊपर, ये जो ज़िंदगी की रोड है ना बच्चों, इसके ऊपर कहीं पर झटके लगेंगे, कहीं खड्डे बने हुए होंगे, कहीं तो ज़िंदगी मोटरवे की तरह नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो यूँ सोचेंगे वो खड्डे, वो सारी चीज़ें, वो बेसिकली ज़िंदगी की टेंशन्स हैं। ठीक है। सो द सन इज अफ्रेड ऑफ फादर्स एंगर, टेल्स अ लाई टू हिम। अब इससे क्या होगा कि फादर इसके बाद डिटेक्ट्स, यानी कि उसको पता चल जाता है फादर को सन्स लाई। इस तरह से कहानी में उलझने बढ़ती चली जाती हैं। राइट, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उलझने, पेचीदगियां। राइट, नाउ वी गेट टू द क्लाइमैक्स। एंड क्लाइमैक्स ये होता है कि व्हेन देयर इज अ पीक ऑफ सस्पेंस, जब वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऊपर, वो ये देखें, ये क्लाइमैक्स चोटी पे पहुंच जाता है, ऑन द पीक। और वो क्या है कि फादर इज एंग्री विद हिमसेल्फ एंड जेसन टू इज इन क्राइसिस। अब देखें, फादर का डिसीजन जो है अभी नहीं आया, उससे पहले पहले तक यू होल्ड ऑन टू फादर की, हाय अब क्या कहेगा ये, अब क्या करेगा फादर। तो जब फादर जो कहता है वो फॉलिंग एक्शन है, लेकिन उससे पहले एक गुस्सा भी है उसको अपने से भी, और जेसन भी एक तकलीफ में है, अब क्या होगा। पनिशमेंट अभी डिसाइड नहीं हुई है। ठीक है, पनिशमेंट फॉलिंग एक्शन में आएगी। राइट, अब फॉलिंग एक्शन में ये है जी, फादर डिसाइड्स टू पनिश हिमसेल्फ बाय वॉकिंग बैक होम डिस्पाइट, बावजूद इसके कि जेसन उसको अपोलोजाइज भी करता है, रिक्वेस्ट भी करता है। तो जेसन्स अपॉलॉजीज एंड रिक्वेस्ट, उसके बावजूद ही डिसाइड्स टू वॉक बैक टू हिज होम विदाउट एनी फर्दर थॉट। अच्छा, अब उसमें रेजोल्यूशन, या एक और वर्ड मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी इस दफ़ा, रेजोल्यूशन। और फ्रेंच में इसको देखिए, ये फ्रेंच से अगला वर्ड आया। फ्रेंच लैंग्वेज में डिनूअमो, डिनूअमो का मतलब होता है जब कहानी का कोई नतीजा निकलता है। ठीक है, द डिस्कवरी, द रिजल्ट, द रेजोल्यूशन, तो दोनों वर्ड्स आपको दे दिए, द रेजोल्यूशन और डिनूअमो, कि जेसन फील्स painful to see his father suffer from physical and emotional pain and learns a lifelong lesson to never lie to his father. तो ये एक नतीजा कहानी का निकलता है। तो दिस इज़ व्हाट द होल प्लॉट कंस्ट्रक्शन इज़। अब आप इस स्टोरी को जब इस तरह से पढ़ेंगे, व्हेन यू एग्जैक्टली नो कि कहाँ से चीज़ें शुरू हुई, कहाँ गई, किस तरह का प्लॉट है, इट्स अ लीनियर प्लॉट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें हैं, तो इस तरह से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। सो ऑल द स्टोरीज जितनी मैंने अभी तक पढ़ाई हैं, मेरी कोशिश रही कि आई शुड टेल यू द वे द प्लॉट हैज़ बिन अरेंज्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप करें। सो आई थिंक सो दिस इज़ द एंड ऑफ इट। द नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी lecture number 5 and its part 2. We will do the exercise of unit number 14. So till then, Allah Hafiz.